Atoms are the basic building blocks of all matter. They're extremely small, make up everything in our universe. Stars, these bananas, our entire body, all made of tiny atoms fit together differently. Atoms are made up of three particles called electrons, protons, and neutrons. Electrons are the smallest, their charge is negative, spinning really fast all around the nucleus. The proton's positive and located in the center, forming the nucleus with neutrons that have no charge at all. When particles amounts different, makes various elements. One proton, one electron, the simplest atom's hydrogen. Every element has its own atomic number, tells us how many protons located in its center. Less protons means less mass, like hydrogen, that's a gas. It's less dense in the air, one proton in the nucleus. Because protons have a strong positive charge, push each other away, bubble back with a strong nuclear force. Balance makes atoms possible, everything in the universe. Different atoms clumped together are known as molecules. What is the element? It is the simplest pure form of a matter that cannot be decomposed into simpler substances. What are the properties of metals and nonmetals? Metals are shiny, while non-metals are not shiny. All metals are good electric conductors. While all non-metals are bad electric conductors except graphite. Metals are good conductors of heat while non-metals are bad conductors. Heat can be transferred through a metal fork
but it can't be transferred through carbon. Metals have high melting points while non-metals have low melting points. We notice here, the piece of iron doesn't melt because it needs very high temperature, while sulfur melts quickly because it needs less temperature. Metals are malleable and ductile, while non-metals are not. So, metals can be bent or reshaped into different forms, but non-metals are brittle. And here are some uses of non-metals. Students, let's review chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टार्ट किया था प्लम पडिंग मॉडल से. व्हाट इज़ प्लम पडिंग मॉडल? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एटम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एम्बेडेड होंगे. नाउ इज़ दिस राइट और रॉन्ग? इसके बारे में साइंटिस्ट ने बहुत स्टडी किया, इनके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए टू फाइंड आउट आइदर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू प्लम पडिंग इज़ राइट और नॉट. So several experiments were performed, and one of the scientists, Rutherford, came out in 1911, and he performed Gold-foil experiment to find out the structure of atom. Along with Rutherford, there were two other scientists, his fellow scientists. They were Hans Geiger and Ernest Martin. इन्होंने perform किया था Gold-foil experiment to find out what is the structure of atom and to find out either the plum pudding model is right or wrong. So in the Gold-foil experiment, it consists of alpha particle enclosed in the lead container. You can see this alpha particle which is enclosed in the lead container, and there is a small slit in the container. The purpose of this slit is that the alpha particles will move straight from this container. Now what is the reason he chose alpha particles? The reason behind this is that these alpha particles are high energy particles and they are heavier in weight. Now if they are heavier and they have high energy, then these alpha particles will move straight from the atom. If according to the plum pudding atom of the structure of the atom is correct, then these alpha particles ये होंगे जो सीधे मूव कर जाएंगे क्योंकि इनका हैवी वेट है. इनके हैवी वेट होगा, ये सीधे मूव कर जाएंगे. दे शुड मूव straight. So this is the reason he chose alpha particles, because of its high energy and heavier weight. Now what is the reason he chose gold foil? ही चूज़ गोल्ड फॉयल थिन फिल्म. इसने ये गोल्ड फॉयल इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि ये बहुत थिन था और इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो भी बहुत कम थे, और जितने नंबर ऑफ़ एटम्स कम होंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, उतना ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. तो अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो इस गोल्ड फॉयल के ऊपर जब
जब पढ़ेंगे, जब जाएंगे इसकी, मूव करेंगे इसकी तरफ, तो ये इनकी क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा, हमें कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है। इसके लिए ये एक सिल्वर कलर का आपको फ्लोरेसेंट स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये चलता है, बुझ जाता है। जब इसके ऊपर रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये चलता है, और अदरवाइज़ ये नॉर्मल पड़ा होता है। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जब इस स्लिट के अंदर से गुजरेंगे और गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ेंगे, तो उसके ऊपर हमने रिजल्ट्स देखने हैं। इसने क्या देखेगा रिजल्ट्स कि क्या होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल पे पड़े तो क्या उसका बिहेवियर था। तो इन एटम्स के ऊपर क्या बिहेवियर पड़ा, गोल्ड फॉइल के जो एटम्स थे उसके ऊपर क्या बिहेवियर पड़ा। होना तो ये चाहिए था, प्लम पडिंग मॉडल के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स मूव करते हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो सभी के सभी जो पार्टिकल्स थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो सब के सब मूव कर जाने चाहिए स्ट्रेट, और मूव करें स्ट्रेटली डिटेक्टर को अचीव हो। ये डिटेक्टर, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, उसके ऊपर होने चाहिए था। तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे अपने, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको ये अल्फ़ा पार्टिकल्स मूव करते हैं एटम के अंदर से गुजरते हुए डिटेक्टर के ऊपर स्ट्रेट मूव करते हैं। होना तो ये चाहिए था इफ़ द प्लम पडिंग मॉडल इज़ करेक्ट, लेकिन क्या हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। द ऑब्जर्वेशंस जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, जैसा कि हमने सोचा था प्लम पडिंग मॉडल के मुताबिक, वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट आई। हुआ ये कि जब ये डिफ्लेक्शन हुई, अल्फ़ा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल पे पड़े, तो कुछ तो ऐसे थे पार्टिकल्स जो कि नॉन डिफ्लेक्टेड थे, जिन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्शन शो की, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, हल्के से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल ही रिबाउंड हो गए, बिल्कुल मुड़ ही गए। अब ये तीन तरह की जो हाइपोथेसिस, तीन तरह की चीज़ें ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स थे, नॉन डिफ्लेक्टेड भी थे, और रिबाउंड भी थे, जिन्होंने शो किया कि ये प्लम पडिंग मॉडल बिल्कुल इनकरेक्ट है। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ नॉट एक्चुअली एज अकॉर्डिंग टू द प्लम पडिंग मॉडल। तो लेकिन इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया ना। व्हाट आर द कंक्लूजन्स, इससे फिर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाली, इसने क्या हाइपोथेसिस निकाली जब उसने फाइंड आउट किया कि डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स भी हैं, नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स भी हैं, और रिबाउंड पार्टिकल्स भी हैं। मैं आपके सामने फिर से एक बार समराइज़ कर देती हूँ इसको। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, लेड कंटेनर के अंदर थे, और एक छोटी सी स्लेट थी जिसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स ने गुजरना था, और इन्होंने पढ़ना था गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब उसके ऊपर पढ़े तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन देखी गई। कुछ पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो नॉन डिफ्लेक्टेड थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की किसी सर्टेन एंगल पे, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल ही रीबाउंड हो गए। तो तीन तरह के रिजल्ट्स मिले इन दिस गोल्ड फॉइल experiment performed by Rutherford in 1911, which rejected plum pudding model. Now what is the hypothesis, इसे क्या hypothesis निकाली रदरफोर्ड ने क्या इसकी hypothesis निकाली। इसकी हम एग्जांपल एक देख सकते हैं। कॉटन बॉल है हमारे पास, कॉटन बॉल है, इसमें जो कॉटन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक स्फीयर का बॉल बनाया हुआ है, और इसके अंदर हमें जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है ये एक डेंसा स्फीयर है। इसका बहुत हैवी वेट है, आप सपोज कर लो कि इसका बहुत हैवी वेट है, और इतनी हैवी है कि इस पर बुलेट भी लगेगी तो वो भी नीचे गिर जाएगी। तो लेट्स सपोज कि ढेर सारी बुलेट्स जाती हैं इसके ऊपर से, हम गुजारते हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सीधी जाई जा, बल्कि ज़्यादातर ऐसी हैं जो सीधी जाई जा रही हैं। और व्हाट इफ कोई बुलेट इसकी बाउंड्री से गुजरे, अगर इसकी बाउंड्री से गुजरेगी तो वो हल्की सी डिफ्लेक्शन शो करेगी, जैसे आपने अभी देखा। भी इसकी बाउंड्री से, इसकी आउटर लेयर से थोड़ी सी गुजरी तो इसने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की। और व्हाट इफ कि एक बुलेट इसके दरमियान से गुजरेगी, तो वो क्या करेगी, वो जो दरमियान से गुजरेगी वो तो बिल्कुल रिबाउंड हो जाएगी, बिल्कुल वापस मुड़ जाएगी। ये तो वैसा ही है जैसा एटम का स्ट्रक्चर था, जैसे हमने अभी देखा गोल्ड फॉइल के अंदर, उसकी डिफ्लेक्शन जैसे हमने नोट की है, तो वैसा ही स्ट्रक्चर है। सो दिस इज़ क्वाइट रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जस्ट टू रिलेट इट, रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो दिया था वो यही था कि उसने ये प्रपोज़ किया कि एटम के दरमियान में मोस्ट ऑफ द स्पेस तो है वो एम्प्टी है, लेकिन एटम के दरमियान में इनर साइड पे कुछ हैवी वेट चीज़ है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन उससे शो हुई है, कुछ डिफ्लेक्टेड शो हुई है। और अगर तो अल्फ़ा पार्टिकल्स उसकी बाउंड्री से गुजरे हैं, उसकी आउटर लेयर से गुजरे हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो किया एट सर्टन एंगल, और कुछ ऐसे हो सकता है गुजरे हैं उसके दरमियान में से, इसलिए वो रिबाउंड हो गए थे। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है वो इसके दरमियान में, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया वो इसलिए शो किया है कि वो पॉजिटिव चार्ज थे, और अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज थे, और पॉजिटिव की उनकी रिपल्शन होती है, इस वजह से उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया है। अब ये जो सेकंड टू केसेस मैंने आपको बताया कि ये अगर उसकी आउटर लेयर से टकराते हैं तो वो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन उन्होंने शो की है, हम कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव है इसलिए रिपेल कर रहे हैं। और जो दरमियान में अगर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स उसके मिडल से अगर गुजरते हैं तो वो रिबाउंड भी हो गए हैं। तो ही प्रपोज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी, एंड द सेकंड इज पॉजिटिवली चार्ज ऑक्यूपाइज स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम, एटम के दरमियान में वो चीज़ है, जबकि ज़्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, नॉन डिफ्लेक्टेड गुजरे हैं, सीधे गुजरे हैं। कुछ हैं जिन्होंने एक सर्टन एंगल पर डिफ्लेक्शन शो किया, और कुछ ऐसे हैं जो
रीबाउंड हो गए हैं, ये चीज़ शो कर रहा है कि एटम के दरमियान में एक मास है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक स्पेस है जो जिसको हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियस है, और इसका साइज़ बहुत छोटा है। अगर इसका साइज़ ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली फिर हमारे पास डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी, जो सर्टन एंगल्स पे भी होगी, जो रिबाउंड वाले होंगे वो भी ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन क्योंकि थोड़े थोड़े हैं इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इनका मास है जिस न्यूक्लियस का वो बहुत थोड़ा है। नाउ लेट्स सी, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, गोल्ड फॉइल से गुजरना है उन्होंने। जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको नजर आ रही हैं, दे आर नॉन डिफ्लेक्टेड, ब्लू लाइन सेज डिफ्लेक्टेड एंड रेड आर रीबाउंडेड। So now let's see the hypothesis of Rutherford after performing this experiment. What were the hypotheses is performed? He said that there is a positively charged center in an atom जिसको हम बोलते हैं it is nucleus है, वो positively charged पिछड़ी है और most of the mass उसके अंदर है, heavy है, dense है, that is why particles क्या हुए हैं, bounce back हुए हैं। तो this is why nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. What is the second one? The electrons evolve around the nucleus in circular path. The size of the nucleus is very small as compared to the size of एटम, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है और वो इसके दरमियान में है। अब दिस वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द रदरफोर्ड एंड ऑल्सो द हाइपोथेसिस, लेकिन इसके बाद भी वी आर नॉट कन्फर्म्ड आइदर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ रेडी टू बी स्टडीड और नॉट। इसके बाद भी साइंटिस्ट ने परफॉर्मेंस अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए, जैसे नील बोहर आया and he rejected, no, not rejected, we cannot say that he rejected Rutherford, but he modified Rutherford atomic model to propose the correct structure of atom. उसने इसके कुछ ड्रॉबैक्स बताए। किसने कहा कि चार्ज ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व इन द सर्कुलर मोशन हैज़ सम एक्सेलरेशन। वी नो दैट अगर एक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं विद सम स्पीड, दैट मीन्स दैट दे हैव एक्सेलरेशन, उनकी एक्सेलरेशन है, और अगर इसकी एक्सेलरेशन है तो दैट दे शुड हैव सम एनर्जी और दे विल रेडिएट एनर्जी, और अगर वो रेडिएट कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट किए जाएंगे दे विल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और अगर वो न्यूक्लियस में फॉल कर देते हैं दैट मीन्स एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन असल में क्या है, एटम तो स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि एटम्स तो स्टेबल हैं, लेकिन उसकी हाइपोथेसिस के मुताबिक तो एटम का एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो अल्टीमेटली फॉल हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन हमारे जो एटम्स हैं वो स्टेबल हैं। तो दिस शोज़ दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज नॉट करेक्ट। तो नील बोहर ने अपने postulates दिए, he proposed the structure of atom in his own way, and he gave two postulates. He said that जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, इसको हम कह सकते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कह सकते हैं उसको, या हम इनको और शेल्स भी कह सकते हैं कि स्पेशल ऑर्बिट्स हैं। ये इनका डिस्टेंस है न्यूक्लियस के साथ स्पेशल है, और जब ये मूव कर रहे होते हैं ना डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं तब ये अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, एंड वाइल मूविंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स the electrons do not radiate energy. These was the postulates given by Bohr. इसकी एग्जांपल को हम रिलेट करते हैं सोलर सिस्टम के साथ। जैसे कि लेट्स सपोज हमारा सन है, वी कैन से दैट सन इज स्टेशनरी एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। क्या हमने कभी ऐसा नोट किया है कि कोई भी प्लैनेट किसी और के ऑर्बिट में चला गया हो? जस्ट इमेजिन कि अगर वो किसी ऑर्बिट में चला गया तो कितनी कोलैप्सिंग हो जाएगी, तो किस तरह के क्या होगा, तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगा। तो इस वजह से ये कि हर वो जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सेम एज द स्ट्रक्चर विद एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल्स में घूम रहे हैं, अपने अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और जब वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं तो वो रेडिएट एनर्जी नहीं करते। तो दिस इज़ द साइन ऑफ स्टेबिलिटी, मूविंग इन देयर ओन ऑर्बिट्स, मूविंग इन देयर ओन लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। इनको हम ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स हैं ये, या फिर एनर्जी लेवल्स को हम शेल्स भी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिटल्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। दिस वाज द पोस्टुलेट गिवन बाय बोहर कि वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर सकते ना। एनर्जी लेवल इंडिकेट्स दैट ईच शेल हैज़ गॉट अ डेफिनेट एनर्जी लेवल। हर शेल का एक एनर्जी लेवल है, और मतलब उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस के साथ एक स्पेसिफिक है। जैसे कि द शेल दैट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस हैज़ लोअर एनर्जी। जो न्यूक्लियस के करीब तर होगा उसकी लोअर एनर्जी होगी, जो उसके बाद होगा उसकी ज़्यादा होगी, जो उसके बाद होगा वो उसकी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जो क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस जो शेल है वो है के शेल, और इसकी लोएस्ट एनर्जी है। उसके बाद एल है, फिर एम है, फिर एन है। तो दीज आर द नेम ऑफ द शेल्स एंड सो ऑन। इनको नंबर ऑफ शेल्स से भी दे सकते हो, जैसे कि के शेल है इट इज़ एन इज इक्वल टू 1, एल शेल है एन इज इक्वल टू 2, एम शेल इज एन इज इक्वल टू 3, एंड एन शेल इज इक्वल टू 4. So you can also name them as 1, 2, 3, 4 or K, L, M, N. So this is energy levels, इनको हम बोलते हैं शेल्स है,
इसके अलावा कुछ सब शेल्स हैं इनके, जिनको हम फर्दर इसको और छोटे लेवल में डिवाइड कर देते हैं SPDF के अंदर. Now, do you think that now structure of atom is clear to you now? और हमें पता है कि now this is the final structure of atom. There is nothing else to be discovered. This is the final structure? No. One of the species is still missing. अभी भी structure of atom के अंदर एक species missing है. And what does this species mean? What name? In 1932, James Chadwick discovered that species. He found out that a species in an atom whose mass is equivalent to the mass of proton and it has no charge on it. Now, what is the name of that species whose mass is equivalent to the proton and has no charge on it? Yes, it is neutron, and neutron resides inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं और इट्स अ वेरी हैवी मास और उनके रिवॉल्व अराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. और दिस इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग एल्स टू बी डिस्कवर्ड. द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ फाइनल नाउ, which consist of neutron, proton inside the nucleus, and there are electrons revolving around it. Now, do you know how the electrons are distributed in the shells? What is the maximum number of electrons in one orbital? Are electrons randomly scattered in the orbital? These are the questions that arise in our mind कि किस तरह से electrons distribute होंगे shells के अंदर. कैसे कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूट है, जिस मर्जी शेल में जिस मर्जी जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स डाल दें या कोई स्पेसिफिक नंबर है. ये चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स. व्हाट इज शेल? According to the Bohr model, electrons revolve around a nucleus in stationary energy levels called orbits. इन orbits को हम बोलते हैं shells, जैसे कि हमने पढ़े K shell है, L shell है, M shell है, N shell है. These orbits are also known as principal energy levels and shells. इनको हम क्या बोलते हैं? Principal energy levels भी और shells भी. These energy levels are represented by principal quantum number n, which assumes as integral values 1, 2, 3, etc. K के लिए क्या होगा? n is equal to 1. L के लिए क्या होगा? n is equal to 2. L के लिए M के लिए क्या होगा? n is equal to 3. N के लिए क्या होगा? n is equal to 4. So these are the integral numbers for all the shells, K, L, M, N shells. The energy of the shells goes on increasing as the distance of the shell increases from the nucleus. जैसे कि न्यूक्लियस के करीब तर वाला शेल है K, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी L की होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी M की होगी और उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? N की. तो K के लिए n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू L के लिए क्या होगा? n इज इक्वल टू 2 और M के लिए क्या होगा? n इज इक्वल टू 3 और N के लिए क्या होगा? n इज इक्वल टू 4. Now to find out that how many electrons K shell can accommodate, we use a formula 2n square. 2n square में n है नंबर, जैसे 1, 2, 3. अब इस n के अंदर 1, 2, 3 को पुट करने के बाद आपको फाइंड आउट कर लोगे आप लोग कि K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. जैसे कि 2n स्क्वायर में K का क्या है? n इज इक्वल टू 1. इसको पुट करो, क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 2. इसका मतलब क्या हुआ कि K शेल कितने अकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है. सिमिलरली L शेल 2n स्क्वायर के अंदर आप पुट करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स को 2 को पुट करो तो K शेल L शेल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स. M शेल कितने कर सकता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स. एंड L शेल कितने? N शेल कितने करेगा? 32 इलेक्ट्रॉन. यानी कि simply by putting the value of n you can find out the accommodation of electron कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने अकोमोडेट कर सकता है, ये आप फाइंड कर सकते हो बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर. सिमिलरली O है 50 हैं और फिर 72 हैं. नो फिर सब शेल्स आती हैं हमारे पास. सब शेल्स क्या हैं? SPDF हैं. दीज आर द स्मॉलर लेवल्स ऑफ शेल्स. और S के अंदर क्या अकोमोडेशन है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है, P में 6 करता है, D में 10 करता है. नाउ लेट्स सी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द शेल्स देखते हैं कि क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस के करीब तर शेल है उसको लोअर शेल कहते हैं. सबसे पहले वो फिल अप होगा, सबसे पहले वो शेल फिल होगा जो न्यूक्लियस के करीब तर है, यानी कि K शेल है. और इसके K शेल की अकोमोडेशन हमें पता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. सबसे पहले K शेल अकोमोडेट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर 9 इलेक्ट्रॉन्स. सबसे पहले हमने फिल करना है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पर्टिकुलर शेल में फिल होते हैं और सबसे पहले लोएस्ट शेल फिल होता है. जैसे K शेल सबसे पहले फिल होगा, उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चले जाएंगे. और जो L शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके अंदर फिल कर दिया. नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है लिथियम की. लिथियम का अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो फॉर दैट पर्पस वी शुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम. दैट व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? इट इज़ 3. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने करनी है तो उसके लिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. जो K शेल है, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है? सिर्फ 2 की. तो 2 इसके अंदर आ जाएंगे
और जो बाकी एक इसका एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो जाएगा एल शेल के अंदर, नेक्स्ट वाले शेल के अंदर। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्योंकि उसकी कॉम्बिनेशन ही इतनी है। तो दिस इज़ द वे हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ lithium containing 3 electrons. The atomic number of lithium is 3. Now these are the energy levels. ये न्यूक्लियस के बाद ये सबसे पहले लोअर है जिसके अंदर 2 आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला लेवल है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ सकते हैं इसके अंदर। एल शेल है, एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स and so on. So the nucleus, what is this? This is nucleus. So let's suppose I have some electrons. This is 1 to 20 electrons है मेरे पास और मैंने इनको फिल करना है। तो फर्स्ट शेल में मुझे पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं, तो उसको मैंने फिल कर दिया। सेकंड शेल में बस कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिर से एंड फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाकी 2 बचे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, जिसमें 2 आ गए हैं के शेल में, नेक्स्ट शेल में आ गए हैं 8, उससे नेक्स्ट में 8 और देन फिर क्या आ गए हैं 2। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग 20 एटॉमिक नंबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 8 8 एंड 2। दिस इज़ ऑल्सो द वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर शेल और लोएस्ट एनर्जी लेवल 2 है, देन फुल स्टॉप which separates the electrons to the of the other level, then 8 and then 2. इन फुल स्टॉप्स ने सेपरेट किया है शेल्स को, so like this. Now I would like you to write the electronic configuration of carbon, which contains 6 electrons. Can you please pause the video and write the electronic configuration? Yes, now how to write the electronic configuration of carbon? It contains 6 electrons, 2 in the first shell, and the second shell contains the 4 electrons. And if you want to write the electronic configuration in number, then how would you write it? Just pause the video and write on the paper. You will write it as 2 full stop 4. And this is the way to write the electronic configuration of the carbon. Now let's see the electronic configuration of magnesium. अब magnesium की electronic configuration करने के लिए the first step you should know is the atomic number. This is the atomic number of magnesium. The atomic number of magnesium is 12, right? Now इस atomic number से हम लोगों ने इसकी करनी है electronic configuration. अब ये electronic configuration according to subshells दिखाई गई है. Subshells means S, P, D, F. S can accommodate 2 electrons, P can hold up to 6 electrons, and D can hold up to 10 electrons. To memorize it, I just told people, I just teach students like आप उसको learn कर सकते हो like school, public school, district public school, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो आसानी से. S can accommodate 2 electrons, जैसे कि 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, p में 6 आ सकते हैं. इस तरह से आप फिलिंग कर सकते हो. अब इसके 12 हैं तो S में 2 आ गए हैं, 2 S में आ गए हैं, और फिर P में 6 हैं, 6 7 8 9 10 हो गए, 2 रिमेनिंग है तो वो आ जाएंगे 3s2 के अंदर. तो ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपके पास. 3s के अंदर कितने आ जाएंगे, 3s में आ जाएंगे 2, और इस तरह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की कंप्लीट हो जाएगी कंटेनिंग 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2. तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम. इसको चार्ट कर याद आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. ये बना हुआ है 1s है, 2s 2p है, 3s 3p 3d है. नाउ इफ़ वी वांट टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव. अब ये 2 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम आयन है ये, तो 2 पॉजिटिव एक कैट आयन है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें हम क्या सिंपली हम ये करेंगे, हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लिखेंगे सारी, और उसके बाद इसके एंड पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने निकाल देना है, लूज़ कर देना है, और वो सिंपली मैग्नीशियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी. तो फर्स्ट स्टेप टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इज़, सबसे पहले 12 इसका एटॉमिक नंबर है, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं विच इज़ 1s2 2s2. ये टेबल नीचे बना हुआ है, इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो. जैसे 1s है और फिर नीचे 2s है, 2p है, 3s 3p है, 4s 4p साथ में 3d आ जाएगा, फिर 5s 5p फिर 4d इनके साथ आ जाता है,
और ये भी तरीका है इनको लर्न करने का, उस तरह से भी याद कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आई सजेस्ट स्टूडेंट्स टू लर्न स्कूल पब्लिक स्कूल मोस्ट ईजी है ये। तो Mg है इसकी, Mg मैग्नीशियम की निकाल रहे हैं, 12 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 देखो S है, आप इसको 1 2 3 सारे S को 1 2 3 4 लिख दोगे। P है 2 से स्टार्ट करोगे, 2 2 3 4 5, D को आप 3 से स्टार्ट करोगे। इस तरह से तरीका होता है लिखने का इनको। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई मैग्नीशियम की, जो कि न्यूट्रल था जब 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। लेकिन हमने तो फाइंड आउट करना है मैग्नीशियम आयन, जो कि 2 पॉजिटिव कैरी कर रहा है। 2 पॉजिटिव है कैटाइन। कैटाइन कैसे बनते हैं? आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको लूज़ करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप लूज़ कर दो आखिर वाले, तो आपके पास क्या आ जाएगी? मैग्नीशियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड मेक श्योर द number of electrons in the magnesium ion is 10। जो न्यूट्रल था उसके थे 12, और ये जो मैग्नीशियम का आयन बना है, कैटाइन बना है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। सो पेपर में आ जाते हैं, न्यूट्रल भी आ जाते हैं और ये वाले भी आ जाते हैं, आयन्स भी आ जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये आयन दिया गया है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया गया है, न्यूट्रल एटम दिया गया है, आयन दिया गया है। तो इसका आपने उस हिसाब से इसकी लूज़ भी कर लेने, गेन भी कर लेने। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको एन आयन आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि अब ये क्लोराइड आयन है या एन आयन है। इसका मतलब ये है कि इसका ये बना है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17, राइट। और ये एन आयन कैसे बनेगा? एन आयन बनेगा बाय आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो उस तरह से उस सूरत में इसका क्या एटॉमिक नंबर हो जाएगा? उस सूरत में इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18। तो 18 के हिसाब से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। उस हिसाब से आप इसको फिल करोगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे सारी की सारी। क्योंकि ये एन आयन है इसलिए आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और वो बन जाएगा 18। 17 उस सूरत में होगा कि अगर आपका न्यूट्रल एटम है, क्लोरीन है, न्यूट्रल है, तो आप इसका करोगे 17 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाता है कि राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम, तो वो आपसे सिंपली 17 के हिसाब से कर दोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो फिर आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि इट इज़ एन एन आयन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो 17 में आप 1 प्लस करोगे, 1 ऐड करोगे, उसके बाद बन जाएगा 18। और इस तरह से फिर आपने ऐसे करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। क्लोरीन है जी 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो 6 7 8 9 10 हो गए हैं, यानी कि 7 अभी तक हमारे पास रहते हैं। तो 3s के अंदर हम 2 डाल सकते हैं, 3s2 कर देंगे। अब ये 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, बाकी 5 बचे हैं। 3p के अंदर कितने आ जाएंगे? 5, क्योंकि p कितने अकोमोडेट कर सकता है? 6 कर सकता है। तो ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की। लेकिन अब क्या है, हमने तो क्लोराइड आयन की करनी है। क्लोराइड आयन कैसे बनेगा? बाय एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो p के ऊपर जो 5 है, आप इसको 6 कर दोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोराइड की ही बन जाएगी। अब मेन आपने याद ये करना है कि k l m और n शेल के अंदर कितनी अकोमोडेशन है, और फिर जिनके सब शेल्स हैं s p d f, उनमें कितनी कितनी अकोमोडेशन है, उस हिसाब से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आप शेल्स के हिसाब से भी कर सकते हो, आप सब शेल्स के भी हिसाब से कर सकते हो। बेहतर ये होगा कि आप दोनों ही कर दो, या बेहतर आपके सब शेल्स वाले ही कर दो। आने आपको बहरहाल दोनों चाहिए। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोराइड आयन 22626। और सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, जिसमें S जो होंगे वो आप S को नंबर देते हो, आप 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4। P को आप नंबर देते हो, 2 से स्टार्ट करते हो आप। D को नंबर देते हो, आप 3 से स्टार्ट करते हो। सो दिस इज़ द वे टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्वेश्चन न्यूट्रल एटम्स के भी आ सकते हैं और और आपको एनाइंस के और आइंस के भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर नंबर 2, structure of atoms. Now this should be your presentation of paper, double underlining using cut nib marker। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके विंटर होम टास्क में भी आए हुए हैं। तो देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर शेल्स एंड सब शेल्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने बताना है शेल क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल, और सब शेल क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल। अगर आप ये चारों चीज़ें बता देते हो तो आपको 2 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे।
देखते हैं shells. These are the main energy levels that an electron can occupy. Shells are represented by circles around the nucleus. अब इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल K शेल है, L शेल है, M शेल है, N शेल है. तो इसके लिखने के बाद आपका ना डेफिनेटली आपको शेल्स का एक नंबर मिल जाएगा. और सब शेल का दूसरा नंबर है, वो है शेल कंसिस्ट ऑफ फर्दर सब एनर्जी लेवल्स कॉल्ड सब शेल्स. The number of subshells in a shell is equal to its n value. Each subshell is designated by a small alphabets S, P, D, F. Now ये जो क्वेश्चन है what are shells and subshell, इसके अंदर अगर आप ये सारी चीज़ें लिख देते हो तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म है. ये हम देख चुके हैं कि what are shells and what are subshells. The next question is what are the defects of Rutherford atomic model. ये देखें ना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के नीचे आपने लाइन लगा देनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है. what are the defects of Rutherford atomic model. इसमें आपने बताना है, इसके दोनों डिफेक्ट्स को अलग अलग करके बताना है. आपने कम्प्लीटली बता देते हो, आपके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. नाउ व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. दे आर Rutherford atomic model experiment proved that plum pudding model of an atom was not correct, but it had a following defects. According to the classical theory of radiations, electron being the charged particle should emit or release energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus. ये हम देख चुके हैं. And if the electrons emit energy continuously, they should form continuous spectrum, but in fact line spectrum was formed. So this was the second question. दोनों डिफेक्ट्स आपने लिखे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, सोडियम, नियॉन, आर्गॉन. इन सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. एंड यू वेरी वेल नो दैट हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फॉर दैट पर्पस you should know what is the atomic number of that element, and if you know the atomic number it would be very easy for you to write the electronic configuration by the formula SSPS. वो मैंने आपको बताया था ना, स्कूल पब्लिक स्कूल करके हम उसको याद कर लेते हैं. इसके लिए याद करने में बहुत आसानी हो जाती है. हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. एस सब शेल में ही आ जाएगा, 1s1 हो जाएगी. बोरॉन है, 5 एटॉमिक नंबर है, उसके लिए 1s2 है और 2s2 2p1 है. नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 1. ये आप सारे कर लेंगे, हम पहले रिवाइज भी कर चुके हैं. ना दिस शुड बी द प्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेश्चन, कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. जस्ट राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट, देन राइट एटॉमिक नंबर नेक्स्ट टू इट, एंड देन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द रदरफोर्ड एंड बोहर थ्योरी. अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत आ जाता है, एंड इट कैन ऑल्सो कम इन द शॉर्ट. ये लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, द मैथड ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस. आपने हर पॉइंट का एक हेडिंग बनाना है. पहला हेडिंग है, उसने बेसिस किस चीज़ पे बेस करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी एंड बोहर बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी. इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी हेडिंग बनाएंगे. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और बोहर की इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी. अगला पॉइंट है हेडिंग orbits. No idea about orbit was introduced. Orbit have angular. This should be the presentation. A spectrum है, atom should produce continuous spectrum, और वो हम Bohr में atom should produce line spectrum, and then existence atom should collapse and atom should exist. Now this ये क्वेश्चन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है. तो ये जैसे भी आता है, इसको अटैम्प्ट करने का तरीका ये है कि आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है, इसकी हर लाइन की हेडिंग बनानी है, और इस तरह से आप इसको अटैम्प्ट करते हैं. और अगर आप करते हो तो आपकी डेफिनेटली आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसके, या 5 मार्क्स मिल जाएंगे, जितने का भी आया होगा. और अगर शॉर्ट आता तो वो भी आपको 2 मार्क्स इसके कन्फर्म है. नेक्स्ट है गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी. अब बोहर एटॉमिक थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स हैं, और अगर आप दोनों लिख देते हो तो यू विल गेट 2 मार्क्स. द पोस्टुलेट नंबर 1 इज हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन one of the orbit of radius r around the nucleus. This is the postulate number 1, and the postulate number 2 is each orbit has fixed energy that is quantized. So ये दोनों postulates अगर आप लिख देते हो तो then you will get full 2 marks. The next question is what is the maximum capacity of shell and subshell to accommodate electron. मतलब कोई भी shell या subshell कितने को accommodate कर सकता है, उसमें कितनी जगह है electrons के आने की. तो यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो कि shell है आपके पास, K shell है, L shell है, M shell है, N shell है. तो इसकी n वैल्यू है 1 2 3 4. इसकी अकोमोडेशन कितनी है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय द फार्मूला 2n². कि K में कितने आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं, M में कितने आ सकते हैं, N में कितने आ सकते हैं. जैसे सब शेल्स हैं, सब शेल SPDF हैं, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ये इसमें S में 2 आते हैं, P में 6 आ जाते हैं, D में 10, F में 14 है. ये टेबल बनाकर आप इसको शो करोगे तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी आपके पेपर की. द नेक्स्ट इज़ वेयर डज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम एग्जिस्ट. ये कहाँ एग्जिस्ट करता है. मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम एग्जिस्ट इन द nucleus, which is small dense area where at the center of every atom comprised of nucleons. Nucleons consist of protons and neutrons. You very well know nucleons के अंदर आते हैं protons और neutrons, और उसके बाद उसके अलावा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व अराउंड कर रहे होते हैं.
nucleus के all the positively charged particles in the atom are proton and neutron are neutrally charged particles. ठीक हो गया. ये उसने ये बताया गया कि न्यूक्लियस के अंदर most of the mass of the atom exist करता है और उस न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनको कंबाइन करके हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो, और जिनमें प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं न्यूट्रली चार्ज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज इलेक्ट्रॉन एमिट और रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी. हाँ जी, तो एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट it does not radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed and it jumps from one orbit to another orbit. यानी कि जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, वो सिर्फ एनर्जी एमिट या रेडिएट अब्जॉर्ब उस वक्त करेगा जब उसने जंप करना है, या ऊपर से नीचे आना है या नीचे से उसने ऊपर जाना है. ये दो कंडीशंस या ये दो सूरतें ऐसी हैं जब वो एनर्जी को एमिट या फिर अब्जॉर्ब करता है. अगर आप नहीं ऑर्बिट में घूम रहा होगा फिर हरगिज़ नहीं करेगा. द नेक्स्ट इज़ वाई मैक्स प्लांक वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़. क्यों मिला था इसको नोबेल प्राइज़ को? इसलिए मिला था बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन क्वांटम थ्योरी. इसने क्वांटम थ्योरी के ऊपर वर्क किया था. नाउ राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आइंस. हमने पहले भी क्लोराइड आइंस की प्रैक्टिस की है. अब देखो आप लोगों को लगेगा क्लोराइड आइन है, क्लोरीन की. बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर लिख के उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, हालांकि ऐसे नहीं है. ये देखो क्लोराइड आइन है एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन Cl negative है तो it is an anion, and for the formation of anion there is an addition of an electron. So if the atomic number of chlorine is 17, after adding one electron it will become chloride ion. तो उस सूरत में इसकी क्या हो जाएगी एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 18, और आपने 18 के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है. जैसे कि पब्लिक करके आपने लिख दिया और उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 2 आ जाएंगे. एक्सेप्शनल्स में आते हैं 2, फिर एक्सेप्शन में कितने आएंगे 2, 6 में कितनी अकोमोडेशन हो जाती है 6 की. तो इस तरह से आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी करनी है. तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर होम टास्क एज वेल. तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इनको करना. तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्रेजेंट योर पेपर लाइक दिस. जस्ट ड्रॉ मार्जिन लाइन्स, यूज़ कटनअप मार्कर, यूज़ ऑफ अंडरलाइंस, और इस तरह से खूबसूरत करके अपना पेपर अटैम्प्ट करें. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2. थैंक यू वेरी